Starting with the great name of Allah, the most merciful and the most gracious. Today, our topic is simple present tense, which is also known as present indefinite tense, and the subject is English. In Urdu, present tense is zamana hal, and present indefinite tense is known as fail hal mutlaq. So, our learning outcomes are: by the end of the lesson, students will be able to translate the given sentences into English and to solve the worksheet which is given at the end. Here is a definition of present indefinite tense. It is used to express an action in present time, habitual or usual actions or daily event or universal fact. So present indefinite tense is used to tell a routine or a daily actions which are there in present time. It is used to express an action in present time which is usually done on a regular basis. For example, a student says, I go to school. It is a daily activity of student to go to school. So such actions are expressed by present simple tense. Another example is, I work in a factory. So it tells us a usual action of a person that he works in a factory on a daily basis. So such kind of sentences indicate that it's your present indefinite tense. Here is the structure of present indefinite tense. In structure we have subject plus first form of verb plus object, and then subject के साथ we have to add s or es. It depends on your pronoun or a subject. So he goes to club. In case of negative, subject plus do and does plus not plus first form of verb and then object. And the example is he does not go to club. Interrogative केस के अंदर क्या होता है, do and does come in the beginning, then subject, then first form of verb and then object, and end में we have to put an interrogative mark or a question mark like does he go to school. If we define present indefinite tense in उर्दू तो ये होता है कि किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने या हाल में पाया जाए, और उर्दू में इसकी रिकग्निशन ये होती है कि इसके एंड में ता है, ती है और ते हैं आते हैं. जैसे मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं और वो स्कूल जाते हैं. आई वर्क हार्ड, वी ईट मैंगोज एंड दे गो टू स्कूल. अब जिससे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हाउ डू वी नो दैट वेयर वी हैव टू यूज़ डू एंड वेयर वी हैव टू यूज़ डज. सो द प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, दे प्लस प्रूलर के साथ हम डू लगाते हैं, एंड ही, शी, इट एंड प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाते हैं. Here is a sentence method in present indefinite tense. Subject I, we, you, they plus plural plus first form of verb, then no SNES and your object. लेकिन इन सब्जेक्ट अगर आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके साथ हम एस और एस लगाते हैं, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है. तो ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको इन अदर वर्ड वी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Okay ji, here are some examples which are related to your subject I, we, you, they and plural noun. Like मैं अखबार पढ़ता हूँ, I read the newspaper. हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, we read good books. तुम रोज़ाना दौड़ते हो, you run every day. वो गेम्स खेलते हैं, they play games. 4 लड़के मैदान में खेलते हैं, 4 boys प्ले इन द ग्राउंड. अब ये जो 4 बॉयज़ हैं ये आपके प्लूरल नाउन है. अब इन केस में आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास वर्ब हैं उनके साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया. ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. Here is a structure for subject he, she, it plus singular noun, then first form of verb plus s and es and then object. अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम होगा तो फिर हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं. जैसे वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स. वो बात करती है, शी टॉक्स. बारिश होती है, इट रेन्स. अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल. Here is a structure of negative sentences. Negative sentences are those which show the negation or no. Subject I, we, you, they plus plural के साथ हम लगाएंगे do not, then plus first form of verb and then your object. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट होगा he, she, it plus singular noun, then we have to use does not and then first form of verb and then object. अब इस केस में जब आप does लगाएंगे तो फिर verb के साथ s और es हट जाएगा. जैसे मैं जाता हूँ I go, मैं नहीं जाता हूँ I do not go, वो जाता है he goes और वो नहीं जाता है he does not go. Interrogative sentences. Interrogative sentences are those which show the क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क्स जो उर्दू के अंदर जिनको सवालिया फ़िक्रे कहा जाता है. एंड दे स्टार्ट विद डू एंड डज. लाइक क्या मैं जाता हूँ, क्या वो जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वो सोती है. सो सेम इज़ द केस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट वी हैव टू यूज़ डू विद आई, वी, दे एंड यू. और डज हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ. सो डू आई गो, does he go, do you read and does she sleep. Negative plus interrogative sentences. Sometimes it happens that we have both sentences together. क्या तुम नहीं पढ़ते हो, do you not study, क्या हम वहाँ नहीं खेलते, do we not play there, क्या सना टीवी नहीं देखती, does सना not watch TV, क्या मैं नहीं जाता हूँ, do I not go, क्या वो नहीं जाता है, does he not go, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, where do I not go, और वो कहाँ नहीं जाता है, where does he not go. So these are the sentences where we have both negative and interrogative. Then we have some other kind of questions where we have why, when, where and whose, and they are known as WH question. अब जैसे वो कहाँ रहती है, where does she live. अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फ़ौरन आपके WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब डज और डू आ जाते हैं. मैं कहाँ जाता हूँ, वे डू आई गो, वो कहाँ जाता है, वे डज ही गो, वो कहाँ सोती है, वे डज शी स्लीप. एंड तुम कब जागते हो, व्हेन डू यू वेक या व्हेन डू यू वेक अप. दोनों तरह से ये आपका ठीक होगा. देन वी हैव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वो आजकल कहाँ रहता है, तुम सैर सुबह की सैर को कहाँ जाते हो, आपको उर्दू कौन पढ़ाता है. सो वेयर डज ही लिव दीज डेज, वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड हु टीच यू उर्दू. अब इसके अंदर जो आपका हु वाला क्वेश्चन है उसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता. बाकी जितने भी आपके WH वाले क्वेश्चन है उसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. हु के बाद डू एंड डज को नहीं लगाते. हु के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस और एस लगता है. लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर में माइनर सा चेंज आएगा. लाइक दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, हु नॉक्स एट द डोर. अपने घर को कौन साफ नहीं रखता. अब यहाँ पे इट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. सो हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस. So in this case we have does after who. Otherwise in case of positive sentences we do not use who with after who we do not use do and does. तुम्हें कौन पढ़ाता है, who teach you. उसे कौन मारता है, who beat her.
देन हमारे पास कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कभी भी नहीं, ठीक है, वो कभी नहीं लिखता है, वो कभी नहीं बात करती है, तुम कभी नहीं मिलते हो, हम कभी नहीं पीते हैं. So such cases we have to use never instead of do not and does not. He never writes, she never talks, you never meet, and we never drink. Here is a worksheet which is related to your simple present tense. इसके अंदर you have to use a suitable verb. Suitable verb means that where we have to use s or es, and where we are not supposed to use s or es with your verb. Like my friend dash me, help आगे लिखा हुआ है, आपने इसको यूज़ करना है कि इधर यहाँ पे helps आएगा या खाली help आएगा. इसी तरह I dash late on Saturday, I sleep, तो आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे खाली sleep आएगा या sleeps आएगा. He dash to beach every weekend, अब यहाँ पे भी आपने खुद अकॉर्डिंग टू रूल आपने बताना है कि he goes आएगा या go आएगा. Then they dash to college daily. Kids do not dash the medicine. Do you dash some help? Does he dash to take admission in college? Does David dash game properly? Do you dash to play chess? She dash how to speak Spanish. I dash towards my home after walking. He dash to participate in extracurricular activities. The patient dash medicine on time and I exercise regularly. लास्ट वन इज शी डैश हर चिल्ड्रन टू मच, और ब्रैकेट में जितने भी आपके वर्ड्स हैं इनको आपने यूज़ करना है प्रॉपरली. देन हेयर इज़ योर ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने खुद से ट्रांसलेट करके यहाँ पे लगा दिए हैं. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, हमारा रोज़ अखबार पढ़ते हैं, नसीमा सच बोलती है, मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, वो गुनाह पर नहीं पछताता है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, क्या अपने किए पर शर्म महसूस करता है, क्या ये तुलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं, शरीफ आदमी की इज़्ज़त की जाती है और मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है. So that is all about for today. Homework task is that you have to do the translation in the notebook. जो कि मैंने आपको ट्रांसलेशन दी हुई है उसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है. सॉल्व द अबव मेंशन्ड वर्कशीट. और दूसरा जो आपका होमवर्क टास्क है कि आपने इस वर्कशीट को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, लाइक विद प्रॉपर वर्ब्स लगाने, सूटेबल वर्ब्स लगाने. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट of present indefinite tense or simple present tense. Thank you.